कौन कहता है रोशनी चांद देता है, सितारे नहीं। मैंने टांक लिया है सितारों को अपनी छतरी में, मेरी राहों में अब अंधेरे नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और मेरी पहचान 26962 यानी मेरा पंतनगर का आईडी नंबर और न जाने कितने ही पासवर्ड्स का ओरिजिनल फॉर्म मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। स्टार्स ऑफ पंतनगर, कीप शाइनिंग। दोस्तों, आज के इस शो में हम रूबरू होंगे एक और ऐसे सितारे से जिसने पूरी दुनिया में सिर्फ अपनी चमक ही नहीं बिखेरी बल्कि पूरी पंतनगर यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन किया है। जी हाँ, पूरी दुनिया में उन्होंने पंतनगर का नाम रोशन किया। असल में अपनी जिंदगी के 10 साल उन्होंने पंतनगर को दिए, या यूं कहें कि पंतनगर से उन्होंने 10 साल लिए। अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि फूड टेक्नोलॉजी में किया। आफ्टर दैट ही चोज टू परस्यू कॉर्पोरेट जॉब एंड आफ्टर डूइंग दैट फॉर 3 years he decided to complete his agri management degree from Pantnagar itself. After completing his MBA, he played a very pivotal role in establishing organized F&B retail in India, having been part of Reliance Fresh, Godrej Agrovet and Subeksha. Then he moved on to another new territory, which was commodities and collateral management practices in India. He became part of NBHC and then Origo Commodities. And then life took a pleasant turn when he went to Africa as an academician. There he had ample time to reflect upon himself and his future journeys. And probably it was then when seeds of his entrepreneurship desires were sown. He came back to India after a couple of years. And then he turned out to be a landscapist, which he himself would have never thought. And guess what he did? He was the key person behind 3 international cricket grounds which India has as on date. That includes Mohali Cricket Ground. And this man had to never settle. So he forayed into AgTech consultancy and represented India as keynote speaker to various world forums, including the World Bank event in Colombo 2019, Global AgTech Conclave in Africa 2019, and Taxila World Conference as well. And at present, he's the director of IndiGram Group, which comprises various agri and healthcare businesses, including the legendary AgriWatch. His startup incubation center has managed to promote more than 60 startups so far. And the journey is still on. Ladies and gentlemen, he is Dr. Dinesh Chauhan. डॉक्टर चौहान, वेलकम टू द शो। शुरुआत करते हैं सर पंतनगर से। सुना है कुछ खासा रास नहीं आया था शुरू में आपको, लेकिन फिर कुछ ऐसा रंग चढ़ा पंतनगर का कि जिंदगी के 10 साल दे दिए। तो सर, कुछ अपनी जर्नी के बारे में शेयर कीजिए हमारी ऑडियंस के साथ में। कैसे रहे ये साल? I took admission in Pantnagar University in the year 1990 in BSc Agriculture and Animal Husbandry. डिग्री लेने के बाद फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया और 1997 में आई पास्ड आउट फ्रॉम पंतनगर यूनिवर्सिटी. आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ यूनिवर्सिटी इन 1997 आई जॉइंड a company with the name of One Foods Private Limited. And what happened one day when I bought Times Ascent, so there was a post for food technologist and interview was scheduled in New Delhi. तो निरुलाज में ये पोस्ट थी और I gave around 4 rounds of interview at an interval of around 15 days or so. और ये काफ़ी रिगरस इंटरव्यूज़ थे और 4 राउंड्स के बाद मेरा 5वां राउंड एमडी के साथ था और उसके बाद मैंने फूड टेक्नोलॉजीज़ की नौकरी ज्वाइन करी. बट शुरू से ही मेरा मन जो था वो हमेशा से मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ था. सो आई प्लान अगेन टू गो इन एंड डू माई फुल टाइम MBA कोर्स. और इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती थी कि मैं वापस से अपनी यूनिवर्सिटी में ही MBA करने जाऊँ. एंड दिस गिव मी ए चांस टू
pursue my another degree, and from my old alma mater, that was G.B. Pant University of Agriculture and Technology, and I took admission in agribusiness management in the year 2000 and I passed out in 2002. और मेरा जो सिलेक्शन हुआ कैंपस से वो महिंद्रा ग्रुप में हुआ और वहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत करी एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी. एंड आफ्टर दैट आई वाज इनटू वेरियस कंपनीज लाइक गॉडरेज, रिलायंस रिटेल, सुभिक्षा, ओरिगो कमोडिटीज, नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन. और उसके बाद मुझे बाहर विदेश जाने का मौका मिला. तो ये जो मेरा तकरीबन 2 साल के आसपास का जो टेन्योर रहा अफ्रीका के अंदर, उसने मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका दिया, बहुत कुछ समझने का मौका दिया. बिफोर गोइंग टू इथियोपिया, I was planning to start my own venture along with one of my colleagues. And somehow it took off after I left India. I came back to India in 2015 from Ethiopia. और इथियोपिया से लौट के आने के बाद I started working along with my colleague into a totally new field, and that was sports management and landscaping. तो जो सबसे पहला असाइनमेंट मैंने किया इसमें वो था कि हल्द्वानी में हमने एक इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड बनाया मैंने. और उसके बाद जो दूसरा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट मैंने किया वो था मोहाली का इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड. इसका फ़ायदा ये मिला कि इतने सारे डाइवर्स तरह के बिजनेसेस को हैंडल करने के बाद जब मैंने कंसल्टिंग में कदम रखा और जब मैंने इंटरनेशनल कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स हैंडल किए, तो ये जो मेरा 15-20 साल का तजुर्बा था, इट हेल्प मी ए लॉट एंड इट केम वेरी हैंडी टू मी टू हैंडल वेरियस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, फैसिलिटेटिंग कंपनीज टू सेट अप देयर बिजनेसेस इन इंडिया, या इंडिया से तमाम कंपनीज को विदेश में ले जाना. और 2019 में हमें सम्मानित भी किया गया सिलिकॉन इंडिया की तरफ से, एंड वी वर रिकॉग्नाइज्ड बीइंग one of the top 10 agri consulting companies. The journey has been quite satisfying till now, or I will attribute a lot of role for my success to पंतनगर यूनिवर्सिटी. तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ तो उसमें पंतनगर यूनिवर्सिटी का, वहाँ की एजुकेशन का, और जो मेरे टीचर्स थे वहाँ पे, जो मेरे सीनियर्स हैं, उन सब का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी कामयाबी में और आगे भी रहेगा. I would like to share with my listeners that I was even fortunate to speak from Nelson Mandela Hall, and this was during last year in November 2019 and during Africa Innovation Week. ये मेरे लिए एक बड़ा गर्व की बात थी कि जिस डायस से बराक ओबामा जैसे लोगों ने देश को और पूरी दुनिया को संबोधित किया था. सो दिस वाज ए वेरी प्राउड मोमेंट फॉर बोथ मी एज वेल एज पंतनगर यूनिवर्सिटी. वाओ. सो व्हाट आर यू डूइंग प्रेजेंटली, सर? Currently, I am working as director of IndiGram Group, and we comprise of various entities like Indian Society of Agribusiness Professionals, IndiGram Lab Foundation, AgriWatch, IndiCare, Indian Society of Healthcare Professionals, and my role here is to look after various programs and business opportunities across various verticals. और हम लोग यहाँ पे बहुत सारा काम लाइवलीहुड के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, स्किलिंग और हेल्थ केयर में करते हैं. एंड वी डू लॉट ऑफ वर्क अक्रॉस इंडिया, एंड वी ऑल्सो डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज with lot of incubation centers in various parts of the world, and we also help lot of agtech companies to get mentorship. And I'm really proud that till now we have incubated more than 60 companies in agtech sectors, and some of them are really doing great work, and we are really happy to see all the startups who are performing under IndiGram Lab Foundation. जीवन का एक खासा हिस्सा बिताया सर आपने पंतनगर में, तो कुछ कंट्रीब्यूशन मानते हैं कि पंतनगर के जीवन का कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है आपके जीवन में? और उस टाइम सिर्फ पढ़ाई ही किया करते थे या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आपकी हिस्सेदारी रहती थी? और आपका क्या मानना है कि पढ़ाई के अलावा की जो
और गतिविधियां होती हैं, वो जीवन में कुछ प्रभाव उनका होता है क्या, वो होनी चाहिए क्या? पंतनगर का जो कल्चर है या जो लाइफस्टाइल है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 10 साल के आसपास पंतनगर यूनिवर्सिटी में बिताए, अलग अलग ड्यूरेशन में, अलग अलग पीरियड में। 1990 से लेके 1996-97 तक मैं उस कैंपस में था, और उसके बाद 2000 से 2002 के बीच में मैं पंतनगर में दोबारा था। और बहुत सारी यादें हैं पंतनगर से जुड़ी हुई, और बहुत सारे तजुर्बे हैं। मुझे याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में रहा करता था तो आई वॉज वेरी एक्टिव इन कल्चरल एक्टिविटीज़ एज वेल, एंड आई वॉज वेरी गुड इन ड्राइंग एंड मेकिंग स्केचेस एंड पेंटिंग्स एंड ऑल। जब मैं MBA में था तो कई सारे इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज कराए वहाँ पे। तो मुझे याद है कि उस ज़माने में हम लोग कॉलेज में कुछ दोस्त हुआ करते थे, और हमने अपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी बना रखी थी, और उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी का नाम मुझे आज भी याद है। और जो हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का नाम था वो था स्पॉन्टेनियस क्रिएशंस। सो इस स्पॉन्टेनियस क्रिएशंस के अंदर बहुत सारे हम लोग ऐड डिज़ाइन करते थे, और बहुत सारे पोस्टर्स बनाया करते थे, कैप्शंस बनाया करते थे। तो since college days I was very much into marketing, advertising, copywriting and all. Sir, will you please share some relevant instances which enriched you, which changed you as a professional? And what would be your piece of advice to our audience, to the young generation? क्या कहना चाहेंगे? आपको अपने ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिकॉज अगर आप जिस काम को करते हैं, अगर उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कभी दुनिया में बाकी लोगों को उस चीज़ पे इतना कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, जहाँ भी है उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत है। वॉट एवर यू आर डूइंग, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस एंड यू शुड हैव फुल बिलीव एंड ट्रस्ट इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सर, अगर पूछूं कि कानपुर के श्याम नगर मोहल्ले में जन्मे हुए दिनेश को द दिनेश चौहान बनाने में किन लोगों का हाथ रहा, किन लोगों ने शेप किया आपके जीवन को, किन का प्रभाव रहा आपके जीवन में, तो किन के नाम लेना चाहेंगे सर? आज मैं जो कुछ भी हूँ और आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ, तो उसका जो श्रेय है वो मैं देना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और माई फादर वॉज ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड माई मदर वॉज एन हाउस वाइफ। उन्होंने लेकिन मुझे एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, एंड आई गॉट माई इनिशियल स्कूलिंग इन सेंट जोसेफ्स कानपुर। आज भी मैं अपने सारे टीचर्स के संपर्क में हूँ, और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और मैं उनसे एडवाइस भी लेता रहता हूँ। और जो मेरी वाइफ है, उनका जो है रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा है मेरे करियर में, एंड शी हैज़ प्लेड ए वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल इन वट एवर आई एम टूडे, एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम फॉर्चुनेट टू हैव सच ए ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल वाइफ एंड फैमिली, एंड शी हैज़ हेल्प्ड मी इन माई एंटायर जर्नी ऑफ माई करियर। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपने परिवार की वजह से हूँ, उनके सपोर्ट की वजह से हूँ। अगर मेरी वाइफ ने इतना सपोर्ट नहीं किया होता मुझे, और मेरे माँ बाप ने मुझे इतनी अच्छी परवरिश ना दी होती, तो शायद मैं आज जो कुछ हूँ वो ना होता। So let me give you a time walk to old Pantnagar days. Good old days. कुछ किस्से शेयर करें जो आज भी चेरिश करते हों, कुछ चटपटी मसालेदार बातें जो शेयर कर सकें यहाँ। और हम सभी कुछ ना कुछ कमाते हैं पंतनगर से, अपनी कुछ पूंजी, कुछ धरोहर बनाते हैं। तो ऐसा कुछ जो आपने कमाया हो, जो आप शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ में, शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ में, प्लीज़ सर। पंतनगर में काफ़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं, बड़े सारे किस्से हैं जो मुझे कई बार याद आते हैं, और जब भी हम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो वो दिन वापस से नहीं लौट के आएंगे, बट वो यादें जो है आज भी हमारे जहन में हैं। और कई बेहतरीन यादें हैं यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में, CB1 में, CB2 के अंदर, सुभाष भवन के अंदर, और संडे को जब लड़कियों का शो होता था मूवीज़ का, सरोजनी भवन की लड़कियां जाया करती थी गांधी हॉल में, और जब हम सारे लोग गांधी हॉल में मूवी देखने जाते थे,
तो वो जो गांधी हॉल के अंदर जब हम पिक्चर देखते थे तो मुझे याद है कि पिक्चर से कोई लेना देना नहीं होता था उस टाइम पे, और मूवी चाहे कोई भी हो उसमें जितना मज़ा आता था मेरे को आज तक लाइफ में, हमें वैसी मूवी का मज़ा हमने आज तक अपनी लाइफ में नहीं लिया। तो अगर ज़िंदगी में मौका दोबारा लगे तो शायद इच्छा यही होगी कि वापस से गांधी हॉल में जाएं और उन्हीं दोस्तों के साथ बैठकर हम उन पिक्चरों का मज़ा लें, और जो एग्रीकल्चर वाले और वेटनरी वालों के बीच में जो कहा सुनी होती थी उस टाइम पे उस शो के अंदर, दैट वाज रियली, मेरे पास शब्द नहीं है उनको बयां करने के लिए। और वो कल्चरल नाइट और वो एग्रीकल्चर नाइट जो हुआ करती थी, और वो तमाम संगीतकार, म्यूजिशियंस, और जो गाने सुनने का मज़ा था उस गांधी हॉल में बैठ के, सो दैट इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। एंड इफ़ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो बैक एंड स्टडी अगेन बाय एनी चांस, इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, तो अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं फिर से उसी विश्वविद्यालय में जाके पढ़ूंगा, और वो मेरा सौभाग्य होगा। जब भी पंतनगर की बात होगी और अगर बड़ी मार्केट की बात ना करी जाए और सेंट्रल कैंटीन की बात ना करी जाए तो मुझे लगता है कि वो बात कभी पूरी नहीं हो सकती। और आई यूज्ड टू रिमेंबर दैट कि देयर वाज नेवर ए इवनिंग व्हेन आई हैव नॉट गॉन टू बड़ी मार्केट, और बड़ी मार्केट में वो तमाम दोस्तों के साथ बैठ के चाय पीना और गपशप करना, सो दैट वाज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ ड्यूरिंग आवर हॉस्टल डेज। एंड मुझे लगता है कि जिस भी आदमी ने या जो भी लोग पंतनगर में जिन्होंने पढ़ाई करी है या जो लोग इसको सुन रहे हैं, तो उनका एक विशेष लगाव जो है बड़ी मार्केट से होगा। MBA एग्री बिजनेस के टाइम पे प्रदीप बोगड़ा वॉज देयर, एंड देन जगदीश नैनवाल वॉज देयर, एंड देन दिनकर जोशी और वीरेन गोस्वामी, सलमान मुल्ला खान, पल्लव पांडे, ये सारे लोगों के साथ जो है हमने बहुत ही बेहतरीन वक्त बिताया। और उसी तरह से जब मैं अंडर ग्रेजुएशन और MSc में था तो शरद खुराना हो गए, पुनीत पचौरी हो गए, संजय शर्मा सर हो गए, और संदीप वर्मा, जवाहर, सो the list is very long and endless, and they all are doing a great job, and they are all successful in their life, and they have been like heading some of the great organizations in this world. And my wishes to all of them for being a wonderful friend, and I would like to say a big thank you to all my teachers and all my friends. पंतनगर यूनिवर्सिटी कभी बड़ी सिग्निफिकेंट रही पूरे देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तो आज की तारीख में क्या रोल देखते हैं सर, देश की इकोनॉमी, देश की ग्रोथ के लिए पंतनगर का क्या रोल आपकी नज़र में लगता है कि आपको पंतनगर को अज्यूम करना चाहिए? आई थिंक दैट यूनिवर्सिटी लाइक पंतनगर हैज़ a very important and significant role in country like India. Pantnagar University was formed in 1960s and has been very instrumental in agriculture revolution in our country. Pantnagar has also been known as harbinger of green revolution for this country, and we all will look towards Pantnagar for second green revolution in India. पंतनगर यूनिवर्सिटी या वो तमाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो भारत में हैं उन सब का बहुत बड़ा रोल है आने वाले टाइम में, because our population is growing and we have to feed more than 9 billion people in the world by 2050, and the rate at which it is doubling, we are not going to double our agriculture production of this universe. So agriculture universities like ours play a very important role. मुझे नहीं लगता कि कोई कारण ऐसा हो सकता है कि ये यूनिवर्सिटी वापस से अपनी उस मुकाम को नहीं हासिल कर सकती। तो सिर्फ रिसर्च और एजुकेशन में ही नहीं, बट दिस यूनिवर्सिटी कैन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अप और गेटिंग लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, गिविंग लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू दिस कंट्री। डॉक्टर चौहान, आप खुद एक ऐसे स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर की बैकबोन रहे हैं जिसने 60 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया, प्रमोट किया। सो व्हाट वुड बी योर व्यू, योर टेक on how the university administration should promote this startup culture in college itself?
पद्मनगर विश्वविद्यालय का जो है एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है 1960 से लेके अब तक, और इस विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया में बहुत सारे तमाम साइंटिस्ट और कॉर्पोरेट लीडर्स दिए हैं. And this university plays a very important role in shaping future of India, especially if we talk about agriculture and allied sector. So मेरा ये मानना है कि पद्मनगर यूनिवर्सिटी कैन प्ले a very instrumental role in contributing to agriculture sector of India. और मैं चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो तमाम स्टूडेंट्स आजकल पढ़ रहे हैं, so they should be promoted or they should be supported to become entrepreneurs. और उनको चाहिए कि जो वो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें if possible they should try to build a culture where they not only serve themselves or their families, but they should be groomed into future entrepreneurs for this country. So अगर हम लोग कोई ऐसा इंक्यूबेशन सेंटर वहाँ पे शुरू करें या हम प्रोत्साहित करें जो करंट पास आउट स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे या जो अभी पढ़ रहे हैं, तो मेरी ये सलाह होगी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इस चैनल के माध्यम से कि दे शुड इनकलकेट दिस कल्चर एमंग द स्टूडेंट्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. So you have been quite active on various social issues for various social causes. तो कभी बचपन में ही सर ऐसा कुछ सोच लिया था कि समाज के लिए कुछ करना है, या बस होता चला गया? बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि जिससे जो है लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी गेट्स बेनिफिटेड. एंड इफ आई गेट ए चांस और व्हेनेवर इट इज़ पॉसिबल, इफ आई रीच टू ए पोजीशन वेयर आई कैन बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन वन वे और अदर, और हम कुछ ऐसा काम करके जाएं कि जिससे कि समाज में एक बहुत सारे बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी गेट्स बेनिफिटेड. सो दिस हैज़ बीन ऑलवेज माई ड्रीम टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन वन वे और अदर. एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि बहुत कुछ आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि बहुत कुछ हम कर सकते हैं सोसाइटी के लिए. और आई एम always trying to do something or other where my action or my activities or my organization can help to serve a larger community in one way or other. इतने कम वक्त में आपने इतना कुछ कर लिया ना सर, कि हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया इन 30 मिनटों में सब कुछ समेट पाना. जी तो करता है कि सुनते रहें आपको, पर वक्त की अपनी बंदिशें हैं. मैं चाहूँगा कुछ संदेश आप हमारे लिसनर्स के लिए छोड़ें. आखिर में जाते जाते स्टार्स ऑफ पद्मनगर के तमाम सुनने वालों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा. और आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस प्रोग्राम दैट दे गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू कम डाउन टू द स्टूडियो एंड शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद ऑल माई बिलवड Pantnagar family members and my old friends whosoever are listening to this program all over there. I would like to thank all of you. आपने अपना समय निकाला और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके. थैंक यू, धन्यवाद. Chauhan साहब, it was great to have you with us. On behalf of our SOP team and all the listeners, we wish you very best of life. Thank you. And keep shining. हमारे आज के शो के स्पॉन्सर थे मिस्टर नितिन सक्सेना, BSc एग्रीकल्चर 2002 बैच. नितिन इज प्रेजेंटली वर्किंग एज वाइस प्रेसिडेंट येस बैंक लिमिटेड. और नितिन पर सरस्वती जी की खास कृपा है. म्यूजिक और आर्ट्स दोनों ही क्षेत्रों में नितिन एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और आगे भी बहुत अच्छा नाम करते रहेंगे. धन्यवाद नितिन. दोस्तों, आज ये हमारा तीसरा एपिसोड था. And I'm extremely glad to share with you that we have reached viewership of more than 15,000 in just 2 episodes. Importantly, ये शो हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुना जा रहा है. जहाँ जहाँ पंतनगर के अलुमनाई हैं, उनके दोस्त हैं, उनकी फैमिली वाले हैं, वो इसको सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं. हमें बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं एंड वी आर एक्सट्रीमली थ्रिल्ड टू हैव इट. दोस्तों, कोई भी शुरुआत स्मूथ नहीं होती, हमारी भी नहीं रही. बट द ग्रेट पार्ट इज बहुत सारे लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं, लोग खुद से हाथ बढ़ा रहे हैं. हमारी राहें आसान हो रही हैं और साथ के साथ हमारी आउटरीच भी बढ़ रही है. सो आई एम ग्लैड टू शेयर विद यू दैट नाउ वी आर पॉडकास्टिंग डायरेक्टली ऑन JioSaavn,
Spotify, Buzzsprout, and also on iTunes from next episode onwards. We also got one place in official Pantnagar 4A website, जहां हमारे शोज के सारे आर्काइव्स हमेशा उपलब्ध रहेंगे. लेकिन अभी इसको और आगे लेकर के जाना है. We need your support in form of sponsorship and funding. You can contact us on our official Facebook page, Stars of Pantnagar, and we shall get back to you. और अंत में धन्यवाद कहना चाहूंगा अपने सभी श्रोताओं का और सभी चाहने वालों का. आप लोगों का साथ रहा तो ये शो पता नहीं कितनी कड़ियां पूरी करेगा. कैन नॉट से, बिकॉज पंतनगर के सितारों की कोई कमी नहीं. सो गाइज, कीप शाइनिंग.